Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn about fractions and decimals. So let's start our lesson for today. In our last class we learned multiplication of fraction. In this class we will continue the topic with our first topic, multiplication of fractions with fractions. Let's learn with an example. Farida had a 9 centimeter long strip of ribbon. She cut the strip into 4 equal parts. How did she do it? She folded the strip twice and then again. What fraction is the total length will each ribbon represent now? Each part will be 9/4 of the strip. She took one part and divided it into 2 more parts. Now what will be the length of that part? Well, फरीदा के पास 9 सेंटीमीटर रिबन स्ट्रिप थी, उसने 4 पार्ट्स में बांटी. कैसे? रिबन को 2 बार उसने फोल्ड किया और फिर काट दिया. तो अब जो पार्ट बचा है वो कौन सी लेंथ रिप्रेजेंट करेगा? वेल वो 9/4 लेंथ रिप्रेजेंट करेगा. अब उसने उस पार्ट को फर्दर एक पार्ट में काट दिया, मतलब 2 पार्ट्स में काट दिए, एक फोल्ड कर दिया. तो अब जो पार्ट है उसकी लेंथ क्या होगी? What will one of the piece represent? It will represent 1/2 of 9/4 or half of 9/4. To do this, we will learn how to find the product of two fractions. First example will be 1/2 into 1/3. 1/2 into 1/3 एग्जाम्पल से समझाती हूँ. एक 3 सेंटीमीटर का पीस था, उसको पहले हमने 3 पार्ट्स में काटा. उसके बाद जो एक पार्ट है उसको फर्दर हमने 2 पार्ट में काटा. तो मतलब हमने एक 3 सेंटीमीटर पीस को कितने सारे पार्ट्स में, मतलब कितने छोटे पार्ट में काट दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 इंटू 1/3. इसका मतलब आया 1/6. 1/6 क्यों? क्योंकि जो बड़ा सा 3 सेंटीमीटर का पीस था उसका सबसे छोटा पार्ट 1/6 हो गया ना, क्योंकि थर्ड वाले पार्ट का भी 2 बार डिवाइड किया था. ठीक है, तो 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3, जो कि होता है 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3. मतलब क्या? 1 इंटू 1 न्यूमरेटर अलग से मल्टीप्लाई हुआ और 2 इंटू 3 डिनोमिनेटर अलग से मल्टीप्लाई हुआ. The value of 1/2 into 1/3 can be found in a similar way. Divide the whole into 2 parts and then divide it into 3 parts. मतलब पहले मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. इसको मैं उल्टा भी कर सकती हूँ. So we find that we multiply two fractions as product of numerator upon product of denominator. मतलब न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई किया और उन दोनों को डिवाइड में रख दिया. You will find that when two proper fractions are multiplied, the product is less than each of the fraction. जब टू प्रॉपर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आंसर आता है वो दोनों फ्रैक्शन से छोटा होता है. क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर दोनों में बड़े हैं. दो बड़ी चीज़ें मल्टीप्लाई होके और बड़ी चीज़ बनाती है, दो छोटी चीज़ें मल्टीप्लाई होके बड़ी चीज़ बनाती है, लेकिन वो नीचे वाले से तो और छोटी हो गई ना. The product is less for each of the fraction, or we can say the value of the product of two proper fraction is smaller than each of the two fractions. We find that the product of two improper fraction is greater than the two fractions. मतलब improper fractions में fraction जब multiply करते हैं, जब product निकलता है वो बड़ा होता है, और the value of the product of two improper fraction is more than each of the two individual fractions. Same बात बोली. ये था मल्टीप्लिकेशन. हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है फ्रैक्शंस में होल नंबर के साथ. अब आते हैं हम डिवीजन पे. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. जॉन हैज़ अ पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. He cuts the strip into smaller strips of length 2 centimeter. You know he would get 3 strips. 3 strips. 6 divided by 2 is equals to 3. Okay, John cuts the strip of length 6 centimeter into smaller strips of length 3/2 centimeter. How many strips will he get now? He will get 6 divided by 3/2 strips. 3/2 strips. अब क्या? 6 को हमने एक फ्रैक्शन से डिवाइड किया है. अभी तक हमें डिवीजन नहीं आता फ्रैक्शंस में, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. Division of whole number by a fraction. We divide a whole number into number of equal parts such that each part is half of the whole. The number of such halves is 2. 1 को अगर हमने 2 हाफ में बांटा तो हमें कितने हाफ्स मिलेंगे? ऑब्वियसली हाफ और हाफ 2 पीसेस मिलेंगे. Similarly 3 divided by 1/4
is equals to number of 1/4 parts obtained when each of the 3 whole parts are divided into 1/4 equal parts. एक सेकेंड, शायद कन्फ्यूजन हो सकता है. अगर मेरे पास कोई चीज़ है जो 3 सेंटीमीटर जितनी बड़ी है, उसको मैंने 1/4 पार्ट्स में, मतलब 1/4 सेंटीमीटर में काटा है, तो मेरे पास कितने पीसेस आएंगे? ठीक है, मतलब 3 डिवाइड बाय 1/4, मेरे पास 12 पीसेस आएंगे. कैसे? जब मैं 3 जितनी बड़ी चीज़ को 1/4 मतलब 0.25 जितनी बड़ी चीज़, छोटी सी चीज़ में कट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ पीसेस तो बढ़ेंगे ना. मेरे पास नंबर ऑफ़ पीसेस आएंगे 12. ऑल्सो ऑब्जर्व दैट 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12. 3 इंटू 4 12 होता है, और 3 डिवाइड बाय 1/4 भी 12 होता है. मैंने जैसा भी बताया, 3 इंटू 4 भी 12 है, और 3 डिवाइडेड बाय 1/4 भी 12 है. इसका कोई रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल है. उसके लिए सीखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. द नंबर 2/1 कैन बी obtained by interchanging the numerator and the denominator of 1/2 और by inverting 1/2. जो मैं 2/1 लिखती हूँ वो एग्जैक्ट इन्वर्टिंग है, मतलब एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है 1/2 का. न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ गया. Similarly, 3/1 is obtained by inverting 1/3. This is called reciprocal. Let us first see about the inverting of such numbers. Observe these products. 1/7 into 7/1 is equals to 1. अगर मैंने 1/7 और 7/1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 1 आया. Similarly, 5/4 into 4/5 is also 1. कुछ समझ आ रहा है? जब भी मैं दो रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो 1 आ रहा है. The non-zero numbers whose product with each other is 1 are called reciprocals of each other. So, reciprocal of 5/9 is always 9/5 and the reciprocal of 9/5 will always remain 5/9. दो ऐसे numbers जिनका product आपस में 1 आंसर देता है उन्हें हम reciprocals कहते हैं. Thus, to divide a whole number by any fraction, multiply the whole number by the reciprocal of the fraction. कुछ समझ आया? जो पिछला एग्जाम्पल था, जब मैंने बोला था 3 इंटू 4/1 इज इक्वल्स टू 12 और 3 डिवाइडेड बाय 1/4 इज ऑल्सो 12, उसमें मैंने एग्जैक्टली किया क्या था? अगर मुझे किसी भी होल नंबर से किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो मुझे उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. मतलब 3 को अगर मुझे 1/4 से डिवाइड करना है तो मुझे 3 को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 4/1 जो कि उसका रेसिप्रोकल है उससे. While dividing a whole number by a mixed fraction, first convert the mixed fraction into an improper fraction and then solve it. अगर mixed fraction है तो पहले improper fraction में convert कर लो. मतलब सबसे easy और आसान वे में, अगर कोई fraction given है जिससे मुझे divide करना है, मैं पहले उसका reciprocal करूँगी और फिर whole number से multiply कर दूँगी. मुझे division का झंझट ही नहीं रहेगा. Division of a fraction by a whole number. अब उल्टा हो गया, पहले होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे थे, अब फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करेंगे. एक क्वेश्चन से सीखते हैं. व्हाट विल बी 3/4 डिवाइडेड बाय 3? 3/4 एक फ्रैक्शन है जिसको मैं डिवाइड करूंगी 3 से. बेस्ड ऑन अर्लियर ऑब्जर्वेशन वी हैव 3/4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3. तो मतलब क्या? मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 3 का. 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3. 3/4 into 1/3 will be 3/12. हमारा आंसर आ गया. While dividing a mixed fraction by a whole number, convert the mixed fraction into improper fraction and do the same. जैसे पिछली बार बोला था वैसे ही mixed fraction को improper fraction में convert कर लो. Division of a fraction by another fraction. We can also find 1/3 divided by 6/5. See, सेम है जैसे होल नंबर्स के केस में था वैसे ही फ्रैक्शन के केस में होगा. जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5 विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 6/5. रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज 5/6. सो 1/3 इंटू 5/6 विल बी 5/18. हमारा आंसर आ गया. सो डिविजन वॉज ऑलवेज ईजी just because it is the inverse of multiplication. This was the end of today's lesson. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.